पेपर 3-1 November 2021. This is paper 3-1. The first question of this is of exponential equation. We have to solve this equation. For within modulus 5x minus 1 is equal to 5 raised to power x. तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, तो हम इसको एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं. 5 रेज्ड टू पावर x को सपोज करें कि दिस इज़ y. तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y माइनस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू y. Squaring each side, we will get 4y minus 1 whole square is equal to y square. तो इसको एक्सपेंड करते हैं. 16 y minus 1 whole square is equal to y square. So this will become 16 y square plus 1 minus 2y is equal to y square. 16 y square minus 32 y plus 16 minus y square is equal to 0. Further simplification, we will get 15y square minus 32y plus 16 is equal to 0. So now we can use calculator to solve this equation. Calculator say we will get y is equal to 4 over 3 and y is equal to 4 over 5. Now we will re-substitute y. हमारे पास 5 raised to power x है. 5 raised to power x is equal to 4 over 3 and 5 raised to power x is equal to 4 over 5. So now since this is an exponential function, तो exponential functions को, exponential equation को हम log से solve करते हैं. So we are taking ln each side. This will become log 5 raised to power x is equal to log 4 over 3. Log properties, x log 5 is equal to log 4 over 3. So we will get x is equal to log 4 over 3 over log 5. So using calculator we will get x is equal to 0.179. This is the solution. इसी तरह हम यहाँ से भी x फाइंड करेंगे. log 5 raised to power x is equal to log 4 over 5. x log 5 is equal to log 4 over 5. From here x is equal to log 4 over 5 divided by log 5. So calculator से we will get x is equal to minus 0.139. तो ये हमने 3 डेसिमल प्लेसेस में रिक्वायर्ड था आंसर. तो दीज आर द 2 आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 is of trigonometry. We have to express 5 sin x minus 3 cos x in the form r sin x minus alpha. तो इसको हम कंपेयर करेंगे. पहले 5 sin x minus 3 cos x is equal to, इक्वेट कर दें, is equal to r sin x minus alpha. तो we will apply here the formula. एक्सपेंड करेंगे इसको. तो r
विद इन ब्रैकेट इसकी एक्सपेंशन होगी साइन एक्स कॉज अल्फ़ा माइनस कॉज एक्स साइन अल्फ़ा। तो आर को इनसाइड ले जाएं, आर साइन अल्फ़ा आर साइन एक्स कॉज अल्फ़ा माइनस आर कॉज एक्स साइन अल्फ़ा। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉज एक्स है। तो now we will compare the coefficients of sin x and cos x. कंपेयर करेंगे comparing coefficients of sin x and cos x। लेफ्ट हैंड साइड पे sin x का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 इज इक्वल टू राइट साइड पे r cos अल्फ़ा है। तो सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ cos x लेफ्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड इज -3, तो राइट साइड पे है r साइन अल्फ़ा माइनस r साइन अल्फ़ा। तो minus sign will be cancelled on each side, we will get 3r sin alpha. This is equation number 2. Now we will solve these two equations simultaneously. हम स्केलिंग 1 and 2 करते हैं, फिर एडिंग करते हैं। सो स्केलिंग एंड एडिंग, स्केलिंग एंड एडिंग, we get 25 is equal to r square cos square alpha and 9 is equal to r square sin square alpha। एडिंग 34 राइट साइड पे आ जाएगा r square, वी आर एडिंग द राइट हैंड साइड, r square कॉमन ले लें विद इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये 1 होता है। सो r स्क्वायर इज इक्वल 34 एंड r इज इक्वल टू प्लस माइनस 34 अंडर रूट, बट it is given that r is positive, so we will take only the positive value, r is equal to 34 under root। ये r है। Similarly we will divide equation number 1 and 2, dividing we will get r sin alpha over r cos alpha is equal to 3 over 5, r cancel हो जाता है, तो sin alpha over cos alpha is equal to tan alpha, so this will become tan alpha is equal to 3 over 5। From here alpha is equal to tan inverse 3 over 5। तो ये रेडियन में हमारे पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 0.54, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। ये पार्ट हो गया है। नाउ पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टेट द ग्रेटेस्ट वैल्यू and the greatest and least possible value of this 5 sin x minus 3 cos x होल स्क्वायर। इसकी हमने लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास पहले ही है, r cos r sin x माइनस अल्फ़ा और इसका होल स्क्वायर है। नो r और अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। पहले हम देखते हैं कि ये r
साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या की रेंज क्या होती है, तो इसको स्क्वायर को लेंगे तो ये हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा आ जाएगा. वी नो ऑलरेडी दैट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो हमारे पास ये आर की वैल्यू हमारे पास है विच इज़ 34 स्क्वायर ले लेंगे तो दिस मीन दैट साइन स्क्वायर अल्फ़ा sin square x minus alpha lies between 0 and 1 using this. तो हमारे पास आर स्क्वायर है 34, तो हमें 34 बनाना है. यहाँ पे 34 हमने लेके आना है, तो 34 से पूरी इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 0 34 साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 34. तो दिस इज़ द लीस्ट वैल्यू is 0 and greatest value is 34. Next question is of differentiation. Question number 3 is of differentiation. Curve, the equation of a curve is given, has one stationary point. इस कर्व के ऊपर एक stationary point है. We have to find the coordinate of this point. Coordinates of this point. Part A, curve, equation of the curve is y is equal to x e raised to power 1 minus 2x. We will differentiate it. Yeah, we have to find dy over dx. So because there is a product of two functions, this is u, this is v, uv dash प्लस v u डैश, ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे. तो हमारे पास dy over dx आ जाएगा. x डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर 1 माइनस 2x वो आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 e पावर 1 माइनस 2x u v डैश प्लस v इज e की पावर 1 माइनस 2x और 1 की डिफरेंशिएशन 1 होती है. ये ग्रेडियंट आ गया है. ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0 बिकॉज द स्टेशनरी पॉइंट है. स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट 0 होता है. सो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले. माइनस 2x e पावर 1 माइनस 2x प्लस e पावर 1 माइनस 2x is equal to 0. We can take common e raised to power 1 minus 2x common. Minus 2x plus 1 is equal to 0. So this means that either e 1 minus 2x 0 or minus 2x plus 1 is equal to 0. So this is not applicable because ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक्स फाइंड करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा, बट लॉग राइट साइड का 0 का लॉग इम्पॉसिबल है. सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल. तो सो हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2. तो दिस इज़ द स्टेशनरी पॉइंट. दिस इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट. नाउ वी हैव टू फाइंड आल्सो द वाई कोऑर्डिनेट. तो कर्व की इक्वेशन में ये पुट कर देंगे. तो कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स ई 1 माइनस 2x. x 1/2 पुट करेंगे, y आ जाएगा आपके पास 1/2 e पावर 1 माइनस 2 इंटू 1/2. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. y इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 1 माइनस 1
that is 0. 1/2 E0. E0 is 1, so y is equal to 1/2. So the stationary point का x कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है, y कोऑर्डिनेट इज आल्सो 1/2, तो स्टेशनरी पॉइंट इज 1/2 1/2. The next part of this question is, we have to determine that whether the stationary point is maximum or minimum. तो maximum minimum बताने के लिए हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं. डबल डेरिवेटिव लेंगे, वंस अगेन उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारे पास डिफरेंशिएट करेंगे इसको. तो ये मैं इसको आगे ले लेता हूँ. फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास है dy/dx is equal to e1 minus 2x minus 2x plus 1. This is the first derivative. Again we are differentiating with respect to x, तो डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाय, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. दिस इज u, दिस इज v, तो इसको करते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं. e⁻1 माइनस 2x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस 2x प्लस 1 वो माइनस 2 आएगी, प्लस अब माइनस 2x प्लस 1 को वैसे लिख लें. डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट इज e⁻1 माइनस 2x की डिफ्रेंसिएशन आएगी -2 e⁻1 माइनस 2x. तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करनी है, साइन देखना है डबल डेरिवेटिव का क्या आता है. पहले इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये आएगा -2 e⁻1 माइनस 2x -2 -2x प्लस 1 e⁻1 माइनस 2x. अब हम x इज इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं यहाँ पे. तो डबल डेरिवेटिव में साइन चेक करते हैं, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है. -2 e⁻0 -2 दिस इज 0. हमने x को 1/2 पुट किया, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी e⁻1 -2 into 1/2 e is 0, so we will get -2. Since the sign of double derivative is negative, this is negative, so the stationary point is maximum. So stationary point is maximum. So next question is of integration. We have to integrate by a substitution method. Substitution, and this question is given. We have to find the exact value of the integral. Integral is 3 to 8 is the limit, 1/x plus 1 x under root, and our substitution is u is equal to x under root. तो इसको चेंजिंग द वेरिएबल मेथड भी कह देते हैं. सॉरी, लिमिट इज 8 नहीं है, ये इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी. तो यहाँ से
u इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, बट हमारे क्वेश्चन में x भी है तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमारे पास x जो है वो u स्क्वायर आ जाता है। अब हमने dx को du भी बनाना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x u को, तो वो हमारे पास du ओवर dx आ जाएगा 1/2 x पावर -1/2। तो इसको आप लिख सकते हो du ओवर dx इज इक्वल टू 1/2 x अंडर रूट, x अंडर रूट इज u, तो du ओवर dx हमारे पास ये आ गया है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हमारे पास आ जाएगा 2x अंडर रूट du, x अंडर रूट की वैल्यू u है तो dx हमारे पास आ जाएगा 2u du। ये हमने पहले फाइंड कर लिया, ये dx की जगह पे ये यूज़ होगा। जिस तरह हमने x जो है वो u में कन्वर्ट करने हैं, इसी तरह dx को भी du में कन्वर्ट करना था, इसलिए ये हमने प्रोसेस कर लिए। अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं 1 ओवर x प्लस 1, x इज u स्क्वायर, तो दिस विल बिकम u स्क्वायर प्लस 1, x अंडर रूट u है, और यहाँ पे dx की वैल्यू जो है ये देखें, dx की जगह पे हम 2u du जो हमने राइट पे किया है वो यूज़ कर लेंगे, 2u du। अब देखें ये वो सारे x u में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये u से u कैंसिल हो जाता है, तो बाकी हमारे पास रह जाता है 2 ओवर u स्क्वायर प्लस 1 du। तो इसको हमने अब इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, पहले 2 को बाहर ले लें, इंटीग्रेशन से के साइन से बाहर ले लें, 1 ओवर u स्क्वायर प्लस 1 du, और अब यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला मैं लिखता हूँ, यहाँ पे फार्मूला होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो वो होता है 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए। तो वी विल यूज़ हेयर, हम पहले इसको यूँ लिखते हैं कि 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, इसको इस फॉर्मेट में लिख लें। तो यूजिंग above फार्मूला we will get 1 over 1 tan इनवर्स u over 1। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल चेंज हुआ है तो वो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट आ जाएगी, लिमिट चेंज करने का ये तरीका है, लिमिट चेंज, लिमिट यूँ चेंज होती है। एक टेबल बनाएं, पहले वेरिएबल हमारे पास x था, अब वेरिएबल हमारे पास u है, तो हमारी सब्स्टिट्यूशन में पहले x था तो हमारे पास लिमिट थी लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट इन्फिनिटी। अब हम यहाँ पुट करेंगे, हमारी सब्स्टिट्यूशन है u इज़ इक्वल टू एक्स अंडर रूट। अब यहाँ हम 3 पुट करेंगे, x को 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो u की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 3 आ जाती है, और
इन्फिनिटी पुट करेंगे x को तो u भी इन्फिनिटी आ जाता है। तो सो हमारी जो लिमिट है वो √3, लोअर लिमिट √3, अपर लिमिट इज़ इन्फिनिटी। तो अपर लिमिट माइनस लिमिट, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो 2 रिमेन्स एज सच। तो यहाँ पे दिस इज 1/1, तो दिस विल बिकम tan inverse infinity माइनस tan inverse √3। तो tan inverse इन्फिनिटी π/2 होता है क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड होता है। तो सो हमारे पास 2 tan inverse इन्फिनिटी, यहाँ से हम लेंगे कि tan 90 π/2 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 बन जाएगा, माइनस tan इनवर्स √3। कैलकुलेटर वो आपको रेडियन में π/3 देगा। सिंपलीफाई करें तो LCM में 6, दिस इज 3π माइनस 2π, यहाँ पे 2 भी है तो ये कैंसिल आउट होके सिंपलीफाई होके हमारे पास π/3 रह जाता है। दिस इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू, ये हमारा आंसर है।